जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि कनाडा जो है उसकी लीडरशिप और इंडिया की लीडरशिप ने फैसला किया है कि वो अपने दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो सबसे पहले अपने हाई कमिश्नर्स को रिस्टोर कर रहे हैं। दैट इज समथिंग बिग। और दूसरा ये है कि सीनियर लेवल पे डिस्कशन शुरू होंगी on trade, connectivity, people to people ties, collaboration, this, that, digital infrastructure, artificial intelligence, uh, food security, और mineral supply, and जो इंडिया है वो कोऑपरेट करेगा विद द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन द सिचुएशन जो कि निजर के कत्ल के बाद पेश हुई थी। ये जरा इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को सुने, देन विक्रम मिश्री साहब को, एंड देन विल टॉक मोर ऑन दिस। Prime Minister Shri Narendra Modi and Prime Minister Mark Carney of Canada have just a short while ago concluded a very positive and constructive meeting on the sidelines of the G7 summit here in Kananaskis in Canada. The meeting discussed the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact, and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed potential collaboration. आगे वो सारी बात है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि वेयर डज इंडिया कनाडा स्टैंड। देखिए, इंडिया ने बार बार ये साबित किया है कि वो एक रेलिवेंट पार्टी है व्हेन इट कम्स टू hosting global events, when it comes to being a important player in terms of demography, economy, in terms of giving a message to the rest of the world कि हमारे पास जो है वो सफिशेंट रिसोर्सेज हैं टू इंगेज द वर्ल्ड। और ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी सुने, सो दैट यू कम टू नो कि ये क्या बात कर रहे हैं। इनसे मेरा ख्याल है गौरव सावंत वहां पहुंचे हुए हैं इंडिया टुडे के, वो सवाल कर रहे हैं। That you and the Prime Minister of India discussed to take this relationship forward, that it reaches its true potential, sir? Well, I think several things, if I may say. I would say the meeting, the fact of the meeting. Let me say a few things. First, just in terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So, as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. सिंपल सी बात वो कर रहे हैं कि इंडिया के पास इकोनॉमी है और डेमोग्राफी है, और आपने माजी में क्योंकि ये किए हुए थे तो ये हाँ, तो हमने आपको इनवाया। अदर देन दैट वो समझते हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो पोल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन दैट इज वेयर इंडिया को वो समझते हैं कि हमें जिसे वो कहते हैं ना, इस चीज को इधर अंडरस्टैंड करें। वो क्या आपको पता है कि G7, अब देखिए ये है G7 की पोजीशन, देयर इज नो जॉइंट कम्युनिके, बट कंप्लीट हो गया सारा। उसकी वजह ट्रंप और बातें करता है, दूसरी लीडरशिप और बातें करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा ये है कि ये जो कनाडा इंडिया के ताल्लुकात स्टेबलाइज हुए हैं, लार्जली आई एम फॉर द स्टेबलाइजेशन विद एनी होना चाहिए।
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो ताल्लुकात कनाडा के से ख़राब होंगे तो देखिए खित्ते का नुकसान होता है। वी नीड टू थिंक। हमारे दोस्त तो इंडिया के अंदर बैठ के कह देते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान को ये भी छोड़ दे, पाकिस्तान को वो भी छोड़ दे। मैं नहीं कहूँगा ये, मैं कहूँगा अच्छी बात है यार, कनाडा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के कारोबार अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के बिजनेस अच्छे होंगे, इंडियन यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दुनिया में वो जाएंगे, वो अपने स्टडी करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि आपने जो है वो ताल्लुकात खराब होने से ऐसे थोड़ा। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी स्ट्रेंथ है, सो वन मस्ट अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ। अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ पे आप नहीं कर सकते कि जो स्ट्रेंथ आप वो। सो मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने इस चीज़ को थोड़ा स्टडी किया और मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेंथ जो है ना इंडिया की, ठीक है, वो अपनी जगह पे है और स्ट्रेंथ पे फोकस वो उनको करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। और सो दैट इज़ वन थिंग। सो पाकिस्तान को इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात जो हैं वो सही होते हैं, ख़राब होते हैं। एक बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो निजर के कत्ल के अंदर इंडिया किस हद तक कोऑपरेट करेगा, किस हद तक कोऑपरेट करेगा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा वहाँ पर, इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और अगर इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि इंडिया सपोर्ट करेगा इस सेंस में कि हाँ जी हम निजर के जो कत्ल हुआ है इसमें आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो दैट इज़ फाइन। अगर नहीं तो ज़ाहिर बात है उनकी फिर अपनी एक पोजीशन होगी। लेकिन आई थिंक इन माय असेसमेंट इंडिया और कनाडा ने दोनों ने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए है। कनाडा को चाहिए मार्केट, सीधी सी बात है भैया, कनाडा को चाहिए मार्केट और इंडिया को चाहिए एक्सेस। दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए था। एंड इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, सारे लोगों का दिल होगा कि हाँ जी हमें ये मार्केट जो है वो मिले, हम इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं, हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट इज़ समथिंग विच एवरीवन इन द वेस्ट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। हर कोई यहाँ पे जो है वो देखने की कोशिश कर रहा होगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें हर कीमत पे इंडिया के साथ काम करना है। ये इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें आप लोग, जो हमारे दोस्त अक्सर जज्बाती हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि इंडिया की रेलेवेंस है और इंडिया ने रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क। देखिए इंडिया दुनिया को क्या बेच सकता है और इंडिया दुनिया से क्या खरीद सकता है, ऑन दिस बेसिस इंडिया को देखा जा रहा है। इंडिया की जो कंजम्पशन है 1.4 बिलियन, बार बार जिधर मोदी साहब जाते हैं कहते हैं जी मुझे ये अवार्ड मिला है, ये 1.4 बिलियन इंडियंस का अवार्ड है। ये कह रहे हैं ना 1.4 बिलियन इंडियंस का ये अवार्ड है। वो क्यों 1.4 बिलियन जगह जगह कहते हैं? वो 1.4 बिलियन इसलिए जगह जगह कहते हैं बिकॉज उनको पता है भैया कि ये जो अवार्ड है अगर 1.4 बिलियन लोगों को मिलेगा तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी बेटर। ये चीज़ें इस तरह बेहतर होंगी। ऐसे थोड़ी होगा कि वो कहेंगे कि जनाब ये मतलब इस तरह। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने रियलाइज कर लिया कि, और ख़ास तौर पर ये तो रियलाइजेशन डोवल साहब से हुई होगी। और देन इंडिया की लक क्या है? इंडिया की लक ये है कि जस्टिन ट्रूडो चले गए। इंडिया की लक ये है ट्रंप आ गया। ट्रंप बाइडेन एरा की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना चाहते जिसमें वो जो उस वक्त कर रहे थे, ठीक है जी। और वहाँ ट्रूडो चला गया। सो इंडिया गॉट अ परफेक्ट चांस टू मेक देयर मार्क। इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त अपनी पोजीशन जो है वो कम बैक की है कनाडा के साथ और बड़ी जल्दी की है। और उसकी वजह एक ये भी है कि कनाडा इस चीज़ को समझता है कि यार इतनी बड़ी इकॉनमी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अमेरिका भी बुलाता है, बाकी भी सारे G7 बुलाते हैं, फ्रांस भी बुलाता है, इंग्लैंड भी बुलाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे इससे कर रहे हैं, मैं क्यों नुकसान कहूँ? तो वो कहते हैं। और देन दूसरा मैंने आपको कहा था कि ये जो 12-14 लाख अगर वहाँ पे इंडियन वोट मौजूद है तो दैट डजंट मीन कि वो कहेंगे कि जी आप होस्टेज बन जाएं उस डियास्पोरा के या उसके। सो दे आर टेकिंग दिस इन दैट सेंस कि हमें होस्टेज नहीं बनना, वरना जैसे। और दूसरी बात, अगर जगमीत सिंह को वोट अच्छा मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट, बट उसको भी नहीं वोट मिला।
सो आई थिंक मार्क कार्ने जो है ना उसको समझ आ गई है, उसने कहा भैया निकलो इस गेम से बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है नरेंद्र मोदी से लड़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया से लड़ाई करने की। और जो असल चीज़ करने वाली है वो क्या है, वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया से इंगेज कर रही है, हमें भी करना चाहिए, कारोबार करें, रिसोर्सेज बढ़ाएं, ये करें वो करें, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हैं आप बात को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जिसे कहते हैं ना, नोबडी विल पे अटेंशन टू दिस, कि ये इंडिया की रेलिवेंस उसकी मार्केट की वजह से है, उसकी डेमोग्राफिक रेलिवेंस की वजह से है। इंडिया स्ट्रेटेजिक गेम में नहीं आ रहा अभी कहीं पे भी। स्ट्रेटेजिक गेम से क्या मुराद है, द वे पाकिस्तान इज इन द गेम। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है ना जी, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ये सवाल जो है ना, दैट इज देयर, इस सवाल को हमें समझना चाहिए, इस सवाल को हमें समझना चाहिए। और लेट्स सी कि ये जो रिस्टोरेशन ऑफ हाई कमिश्नर्स हो रही है, और ये जो रिलेशनशिप है मोदी साहब का और मार्क कार्ने का, ये कैसा चलता है, क्योंकि मार्क कार्ने भी अगले 4 साल मौजूद है, मोदी साहब भी अगले 4 साल मौजूद हैं। सो इट मीन्स दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दोनों मुल्कों के लीडरशिप के अंदर ये कॉम्बिनेशन जो है वो मौजूद है, और इस कॉम्बिनेशन को वो समझते हैं कि यार ये हमारे लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। बहरहाल असल चीज़ तो है आबादी, और आबादी के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी अहमियत कैसे बढ़ानी है, एंड आई थिंक इंडियंस आर डूइंग इट। आपको पता है पूरे का पूरा आईफा अवार्ड उठा के कनाडा ले जाते हैं। तो जब मैं ये पुरानी मिसाल देने लगा हूँ, आईफा अवार्ड जब टोरंटो के अंदर होता है ना, तो आपको पता है कनाडा की कितनी लॉटरी निकलती है, तो मिलियन 2-3 मिलियन डॉलर तो उनको बचत हो ही जाती होगी कनेडियंस को। तो दैट इज हाउ व्हेन कंट्रीज इंगेज विद यू, वो आपको इस अंदाज से देखते हैं, वो आपको इस अंदाज से देखते हैं। लेट्स सी कैसे चीज़ें ये होती हैं, बट दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट।